So today we are trying to go to discuss about the concept of your potentiometer beta. Potentiometer is a device which is used to, number one, compare the EMF of batteries, the EMF of your batteries. Number two, null point, and number three, internal resistance. Okay, so potentiometer is a device which is used to compare the EMF of the batteries, null point, and internal resistance of your batteries beta. It is generally 6 to 10 meters long or 4 to 10 meters long beta. It is generally 6 meter to 10 meter long. It is generally 6 meter to 10 meter long wire. Okay. And the wire must be made up of same material and same area of your cross section beta. You also remember that the wire must be of same material and same area of cross section. Okay. The wire must be of same material and same area of your cross section. Okay. This is something like this beta. This is your potentiometer wire from your point A to your point B, isn't it? And this one is connected to one positive terminal of your battery and negative terminal of your battery, and also your rheostat. And the other end of this one is being connected to your battery like this. This one is your rheostat. This is the EMF of your battery E. This is the length of the potentiometer wire. That is nothing but of your L. This is also called as of your primary circuit. Also called as what? Primary circuit. So whenever you are taking a potentiometer wire beta, resistance of your rheostat must be equal to 0. Potential of your wire will be equal to the EMF of the battery. So as rheostat resistance is increased, potential of the wire decreases. This basic concept you need to remember, because as the resistance is increasing, what is happening to the potential? Potentiometer wire will be your decreasing for the given condition. Clear? So before this one, let us try to revise some basic concept beta. Revision of your basic concept. To understand the potentiometer in detail, see. First one. You know that when we are talking about a cell which is open, this is a terminal B and this one is your terminal, and there is an internal resistance for this one. There is an internal resistance R in this one. This is your EMF E. This is a terminal A and this is a terminal B. So for an open circuit, the current will be equal to how much? 0. So potential across your A minus potential across your B will be equal to how much beta? EMF. In the open circuit, potential of your A minus potential of your B will be equal to your E. Second point. The same way, if this is a resistance, this is a battery positive terminal and this one is a negative terminal. Okay. And this one is nothing but of your B. And this one is, say for example, A. And say for example, this is connected to an external source of a battery. This is internal resistance small r. This is your EMF E. And there is a flow of a current in this one like this from A to B. So when there is a flow of current from A to B, is it charging or discharging beta? This will be your charging of a battery. The charging of a battery, if I'm writing the potential, VA minus of your VB
VA minus of your VB is equals to E plus of your I into R. I hope you remember this one. In the charging of a battery, potential of A minus potential of your B is equals to E plus of your I into your R part of relation. The same way, if I'm having an internal resistance, this is your positive terminal of the battery, negative terminal of a battery. This is a point B, and this one is your point A. Okay, and there is a flow of a current right now in this direction, and this is internal resistance R. EMF of the battery is E. Now, when the current is going out from the battery, this will be what? Discharging. This will be what? Discharging. During the discharging of a battery, you know that potential of your A minus potential of your B, VA minus of your VB will be equal to E minus of your I into R. Okay, na? So, in the potentiometer, before we try to enter into the concept, we should have the basic concept that if there is no flow of a current in a battery, then potential across your A minus potential of your B must be equal to EMF of the battery. If there is a flow of current from the point A to the point B, then it is known as charging of a battery. VA minus VB will be equal to your E plus of your I into your R. And if there is a flow of a current from the positive terminal of your battery to the negative terminal of your battery, then VA minus of your VB will be equal to E minus R. That is known as of your discharging of your circuit. That is known as of your discharging of your circuit part of relation. Is it clear? Is it clear? Sure. Let us try to understand one small concept in this one, beta. So before you are entering into the basic topic, we should understand what do you mean by the potential gradient. What do you mean by potential gradient? What do you mean by your potential gradient? I told you starting itself, potential gradient. Gradient means anything divided by length is known as gradient. Rate means anything divided by time is known as of your rate. If it is temperature divided by your length, it is known as temperature gradient. If it is pressure divided by length, it is known as pressure gradient. If it is potential divided by your length, it is known as of your potential gradient. Like say for example, I'm having a wire. Like say for example, A to B like this. Listen it carefully, beta. चलो मान के चलो मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है. This is your wire A and as well as of your B. Length of this wire is say for example 20 meters. Length of the wire कितना है मेरे पास 20 meters part of relation. और यहाँ पर मान के चलो पोटेंशियल है 100 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल है मान के चलो 0 वोल्ट. ओके, तो इसमें का इसका मतलब क्या बेटा, ए के पास पोटेंशियल 100 था और बी के पास पोटेंशियल 0 था, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ बेटा? कोई बोल सकता है उसका मतलब क्या है? पोटेंशियल ए के पास 100 वोल्ट है, पोटेंशियल बी के पास 0 वोल्ट है, यानी 100 से ये 90 हो गया होगा, 90 से 80 हुआ होगा, फिर 80 से 60 70 50 गो ऑन होते होते क्या हो रहा है 0. तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? स्लोली डिक्रीज हो रहा है, स्लोली डिक्रीज हो रहा है. अगर मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मान के चलूं, अगर मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मान के चलूं तो कितना होगा पर मीटर, कितना पोटेंशियल ये ड्रॉप किया हुआ है. तो ये पूरा वायर कितना है 20 मीटर्स. So to find potential difference, to find potential gradient, divide the potential with the length. To find the potential gradient हम लोग क्या करेंगे? dv by dx करेंगे. Potential gradient कितना है मेरे पास? 100 minus 0 divided by 20 minus 0, यानी ये हो गया 100 divided by 20. ये चले गए 2 1s are 2 5s are. So this will be equal to how much? 5 volt per meter. इसका मतलब क्या? 1 मीटर चलने में 5 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, isn't it? So it means that when we move 5 meters, then there is a drop of 5 volt per meter. ठीक है ना? तो अगर मैं आपको पूछूं, if I am asking for you, what is the potential at your C? Say for example, I am taking somewhere here a point C, which is say for example of your 2 meters. मतलब अगर मैं 2 meters चला तो मेरा potential drop कितना होगा, isn't it?
So potential across your A and C will be equal to how much for me? Potential across your A and C will be equal to dv, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना पहले, dv by dx इनटू कितना लेंथ चला उससे मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल गिव मी द पोटेंशियल अक्रॉस दैट गिवन पॉइंट। देखो ये से सी का मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट पर मीटर मालूम होना चाहिए। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर मीटर निकालने के बाद जितना लेंथ में चला, सो दैट आई कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो उस लेंथ से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो पोटेंशियल अक्रॉस योर ए टू सी विल बी इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स इन टू योर एल पार्ट ऑफ रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। सो डीवी बाई डी एक्स कितना है मेरे पास, 5 वोल्ट है, और मैंने चला कितना है, 2 मीटर से, तो यानी कितना पोटेंशियल हो गया मेरे पास, 10 वोल्ट पर मीटर। सो ड्रॉप कितना हुआ, कोई बता सकता है क्या? सो ड्रॉप इन पोटेंशियल इज, सो ड्रॉप इन पोटेंशियल इज, ड्रॉप इन पोटेंशियल इज कितना होगा बेटा, कितना ड्रॉप आया, 10 वोल्ट का ड्रॉप आया, 10 वोल्ट का ड्रॉप आया, isn't it? यानी पोटेंशियल पॉइंट सी पोटेंशियल विल बी व्हाट, but at point C potential will be how much? Potential will be 90, क्योंकि ड्रॉप कितना था 100, तो 100 है मेरे पास, ड्रॉप कितना आया 10, सो 100 माइनस 10 ये कितना हो गया 90 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो कभी भी मुझे पोटेंशियल निकालना है कोई भी पॉइंट अक्रॉस योर पोटेंशियोमीटर वाइज, तो क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से उसका लेंथ मुझसे मल्टीप्लाई कर लो, तो सीधा सीधा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। आ गया सभी को? यस सर। सो फिर से एक बार देख लो बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट पार्ट ऑफ रिलेशन। सो डीवी बाई डीएक्स निकालना है पहले। सो डीवी बाई डीएक्स मतलब क्या, राइट नाउ यहाँ पर हम लोग को 100 मीटर्स वाइड दे रखा है, अगर 20 मीटर्स का लेंथ है उसका, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना बता रहा है, अगर मैं 1 मीटर चला तो देयर इज अ ड्रॉप इन द पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। तो उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर मैं 2 मीटर चला तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो पोटेंशियल ऑफ योर ये वीए विल बी इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स इनटू योर एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करो, जितना आप लेंथ चल रहे हो तो वो अपने को पोटेंशियल दे देगा उस पॉइंट पे। सो पोटेंशियल ऑफ योर एसी विल बी इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स इनटू योर एल। So dV by dx is how much for me? 5 into 10, 5 into 2, that will be equal to 10 volt per meter. So drop in potential is how much beta? 10 volt. So but at point C, potential will be how much for me? 100 minus 10, that will be equal to 90 volt. Is that clear? Is that clear? यस सर। यस सर। Next heading लिख लो, how to find null point. How to find null point. How to find null point. ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। सो हाउ डू यू फाइंड आउट द नल पॉइंट पार्ट ऑफ रिलेशन। नल पॉइंट में क्या होता है, देखो एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस तरह से कुछ होता है बेसिकली। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये होगा यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर का वायर, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और यहाँ पर से ये हो गया वायर, और यहाँ पर कुछ अपने पास पोटेंशियोमीटर का वायर होगा। सो दिस वन इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब बस इतना ही है कि ये वायर जो है ना मेरे पास, इट इज ऑफ 4 to 10 मीटर्स वायर, ठीक है ना, 4 to 10 मीटर्स है, इसलिए मैं थोड़ा सा थिकनेस लगा रहा हूँ। तो ये कनेक्ट करा हुआ है इस पॉइंट पे, और ये कनेक्ट करा हुआ है इस पॉइंट पे। तो इसका पोटेंशियल है, मान के चलो मेरे पास 100 वोल्ट है, और इसका जो टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये मान के चलो मेरे पास 20 मीटर्स है। ये मान के चलो मेरे पास कितना है, 20 मीटर्स है, ठीक है। और इसको नीचे एक पोटेंशियोमीटर को हम लोग ने एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस वन इज ऑफ योर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर एक छोटा सा एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देयर इज ए गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू दिस वन, एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद ए जॉकी और स्लाइडर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास मान के चलो 1 ओम, और इसका पोटेंशियल है मान के चलो 8 वोल्ट, ठीक है। और ये मान के चलो पॉइंट ये है, और ये मान के चलो पॉइंट बी है। तो अगर पॉइंट ये है तो ये भी पॉइंट ये होगा, और ये हो गया मेरे पास मान के चलो पॉइंट सी। क्लियर? इज द डायग्राम क्लियर?
100 वोल्ट जो है ना प्राइमरी बैटरी का पोटेंशियल है बेटा, नीचे जो सेल Yes, है sir. दैट इज नोन एज प्राइमरी सर्क्यूट। प्राइमरी सर्क्यूट के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम, एंड ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है 20 मीटर। टू फाइंड द नल पॉइंट बेटा, नल पॉइंट कभी भी निकाल रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर द करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो। मान के चलो ये डिस्टेंस x होगा जहां पर द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज बिकमिंग फॉर मी जीरो। फॉर नल पॉइंट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितना होना चाहिए? जीरो। दैट मींस potential gradient of your length, potential gradient of your rod will be equal to how much? कोई बता सकता है? potential gradient of the rod will be equal to 100 divided by 20, तो ये फिर से आ जाएगा 5 volt per your meter। that means across the बैटरी के पास पोटेंशियल कितना है बेटा? 8 वोल्ट। so across the battery of potential drop is कितना है? 8 वोल्ट है, क्योंकि A to B के पास तो पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है मेरे पास 8 वोल्ट। दैट मींस देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस योर x। यानी A एंड B के पास का पोटेंशियल अगर A एंड Q के बराबर हो जाए then there will be no flow of your current, so I can write that point here right now. there is no current there is no current in galvanometer if potential drop across battery is equal to potential drop across x। यानी potential drop across your AB will be equal to potential drop across your AB must be equal to potential drop across your x। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स कैसे निकालते हो अभी बोलो? मैंने अभी बताया आप लोग को। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स कैसे निकालोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द लेंथ निकालना पड़ेगा, डीवी बाई योर डीएक्स अक्रॉस योर रॉड इनटू उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करो जितना हम लोग वहां पर निकाल रहे हो। वहां पर एल कितना लिया मैंने? एक्स लिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो मैं इसको इनटू एक्स। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रॉड कितना है मेरे पास? आया अभी 5। कितना लेंथ चल रहा हूं मैं? एक्स। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस योर ए बी कितना है मेरे पास? 8 वोल्ट। तो x की वैल्यू आ गई कितनी मेरे पास? 8/5। तो इतना लेंथ अगर मैं क्रॉस करूं, सो एट ए डिस्टेंस ऑफ x is equals to 8/5 meters, the current in the galvanometer will be equal to 0। is that clear for everyone? Potential drop across your AB must be equal to potential drop across your x। अब potential drop across x मतलब potential drop across your A and Q, ए एन क्यू के बराबर होना चाहिए। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया आप लोग को। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस योर ए क्यू विल बी इक्वल टू यू मल्टीप्लाई विथ योर डीवी बाय डीएक्स इनटू योर एक्स पार्टिकुलेशन इनटू योर एक्स और इनटू योर एल। दैट विल गिव मी द आंसर। आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक? Yes, sir. क्लियर Yes, है sir. यहाँ तक? पक्का? पोटेंशियल ड्रॉप निकलने आया। अगर पोटेंशियल ड्रॉप में अगर वो पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस द पोटेंशियल ड्रॉप और द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस योर AQ मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। AB के पास ऑलरेडी पोटेंशियल मेरे पास 8 वोल्ट है। AQ के पास पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का मेथड क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप निकालो और x से मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव मी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस योर A एंड Q पार्टिकुलेशन। इज इट क्लियर? चलो और एक Yes, क्वेश्चन sir. दे रहा हूं, देखो जल्दी से ट्राई करो। मान के चलो मेरे पास एक बैटरी है इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियोमीटर वायर है। तो इन दोनों के बीच में मेरे पास योर पोटेंशियोमीटर वायर है इस तरह से। समझ के देना आंसर। इसका मान के चलो मेरे पास 100 वोल्ट है बैटरी, इसका मान के चलो मेरे पास 1 ओम है, और इसके मान के पास चलो मेरे पास 14 ओम्स, ठीक है ना। और ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया मेरे पास पॉइंट बी, ठीक है। एंड देयर इज ए डाउन अगेन ये बैटरी राइट नाउ। तो यहाँ पर मेरे पास और एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, एंड हियर देयर इज ए
स्लाइडर लाइक दिस। तो यहाँ पर हो गया इसका पोटेंशियल मान के चलो फिर से 8 वोल्ट। अगर पॉइंट यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी ये होगा, और यहाँ पर पॉइंट मान के चलो बी हो गया, और यहाँ पर मान के चलो ये लेंथ दे रखा है मेरे पास 10 मीटर्स का। टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना है मेरे पास, 10 मीटर्स का वायर है, और ये मान के चलो इट हैज बीन मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ योर एक्स। और एक डाटा दे रखा है कि ये जो वायर है ना पोटेंशियोमीटर वायर, इसका रेसिस्टेंस है 1 ओम पर मीटर। जरा ध्यान से सुनो, द रेसिस्टेंस ऑफ योर मीटर कितना है, 1 ओम पर योर मीटर है। तो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जो है ना, उसका रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम पर मीटर है। और नीचे जो ईएमएफ लगा हुआ है उसका बैटरी का ईएमएफ है वी, और यहाँ पर हो गया पोटेंशियल ए एंड एज वेल एज ऑफ योर बी डैश, और एक्स हो गया मेरे पास यहाँ पर। तो मुझे फिर से क्या निकालना है, at what point the galvanometer shows me no deflection. Okay, so what is x, what is x for null deflection, for null deflection? null deflection मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो का पॉइंट कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है बेसिकली। कर सकता है कोई, देखो जल्दी से। पहले रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालो बेटा। आर इफेक्टिव कितना निकालोगे, कोई बता सकता है? आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी होगा, प्लस 14 ओम्स होगा, प्लस ऑफ योर 1 ओम होगा। रेजिस्टेंस ऑफ योर ए बी कितना होगा बेटा, ये 10 मीटर का वायर है और एक एक मीटर के पास रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 10 मीटर का रेजिस्टेंस कितना बना बेटा, 10 ओम्स बनेगा। ये हो गया 14 प्लस ऑफ योर, ये हो गया 1, तो कितना बन गया बेटा, 14 प्लस 1 15 प्लस 20, तो ये बन गया मेरे पास 25 ओम्स। सो आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 25 ओम्स। तो इसमें से जो करंट निकलेगा तो करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी बाई यूर आर, वी बाई यूर आर। वी की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई यूर 25, तो करंट आ गया मेरे पास 4 एम्पियर्स, isn't it? 25 ones are 25 fours are, so ये हो गया 4 एम्पियर्स। यानी पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? पोटेंशियल अक्रॉस यूर ए एंड बी विल बी इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। तो करंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए टू बी का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10, तो ये हो गया मेरे पास 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी कितना है 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब dv by your dx, dv by your dx will be equal to how much बेटा, dv कितना है 40 डिवाइडेड बाय dx कितना है मेरे पास 10 मीटर्स, तो ये हो गया कितना 4 वोल्ट पर मीटर। यानी 10 मीटर वायर के अंदर अगर मैं 1 मीटर चलूं तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4 मीटर है। तो अब करना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेरे एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालना है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस योर ए एंड बी डैश must be equal to your potential difference across your A, और ये मान के चलो मैं पॉइंट ले रहा हूं C। Okay, so potential drop across your A B dash must be equal to potential drop across your A B dash must be equal to potential across your A and C, ठीक है ना? So potential difference across your A and B dash की वैल्यू कितनी है बेटा, कोई बता सकता है? That is given how much for me 8 in the problem. Potential drop across your A and C कितना है बेटा मेरे पास, potential drop across your A and C मतलब ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस योर ए एंड सी इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट आया। तो उससे हम लोग करना क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग मल्टीप्लाई करना है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर डीवी बाय योर डीएक्स इनटू योर लेंथ से मल्टीप्लाई करना है एक्स का। तो डीवी बाय डीएक्स कितना है मेरे पास 4 वोल्ट है, तो ये हो गया 8 इज इक्वल्स टू ये कितना है मेरे पास 4 इनटू योर एक्स है। तो अब ये कितने में जाएगा बेटा 4 1 जा, ये हो जाएगा 4 2 जा, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी 2 मीटर्स। अगर मैं 2 मीटर्स चलूं देन वी विल बी गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन। आया समझ में सभी को, आया समझ में सभी को? पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, आया सभी को? यस सर। चलो वेरी गुड। यस सर। चलो नेक्स्ट वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पोटेंशियोमीटर पे अगर क्वेश्चन आया तो गलती नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से मैं करा रहा हूँ उसी तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर सर वायर है। आप कुछ अनाउंस कर दे बोला था ना। टाइम हो गया क्या? यस सर। ठीक है। सी बेटा एक्चुअली मैं ये कल कर लेता हूँ फिर। एक्चुअली वाज प्लानिंग दैट कि यहाँ से मे बी दिस मंडे और मे बी नेक्स्ट मंडे से एक एक्सक्लूसिवली क्लास इवनिंग नाइट में भी एक शुरू कर रहा हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली 10 o'clock से लेकर 11 o'clock तक या 10:30 से लेकर 11:30 तक।
वो टाइम अभी मैं फिक्स नहीं किया। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 10:30 to 11:30 और मे बी फ्रॉम 10 o'clock to 11 o'clock और 40 मिनट्स के लिए एक सेशन होगा जहां पर एक्सक्लूसिवली खाली न्यूमेरिकल्स रैंडम वे में हम लोग करते चले जाएंगे। सो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट ईयर का टॉपिक कर रहे हैं। सम 500 क्वेश्चंस आई हैव टेकन। आई विल सेंड यू द कंप्लीट क्वेश्चंस एट ए टाइम। एक एक चैप्टर में 40-45 क्वेश्चंस है बेसिकली, विद की मैं आप लोग को भेज दिया करूंगा। तो आप लोग भी जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहेगा रैंडमली आप लोग करते रहो। और इवनिंग में मे बी दिस मंडे या मे बी नेक्स्ट मंडे से आई विल बी स्टार्टिंग दैट असाइनमेंट। तो डेली हम लोग प्रॉब्लम्स ओरली प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसी के अंदर करेंगे एंड ट्राई टू सी दैट विल ट्राई टू डू कंप्लीट फर्स्ट ईयर चैप्टर्स विद इन मे बी 1 वीक या मे बी एक 20 डेज का स्लॉट डाल लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस टू योर लास्ट चैप्टर दैट इज नथिंग बट वेव्स, क्योंकि 11th में वेव्स तक आता है बेसिकली। तो वेव्स तक हम लोग विल प्लान दैट इन अप्रैल तक खत्म कर लेंगे। ये मॉर्निंग की क्लास तो एज यूजुअल ही चलती रहेगी, but evening also there will be a class running from here onwards for the only exclusively numericals. randomly हम लोग न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे so that we'll try to see that randomly अपने को फॉर्मूलेस कितने याद आ रहे हैं और कितना हम लोग रिकलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो इवनिंग में सुन सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कंपलसरी करना है। मैं तो करूंगा, अगर आप लोग आए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने बच्चे आ रहे हैं उन लोगों के लिए तो कंटिन्यू क्लास रहेगी। मॉर्निंग क्लास तो देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस, एज इट इज इट विल बी देयर, but evening class here onwards it will be a numericals, and this numericals class are only for those students who really want to cross 80 to 120। बेसिक पेपर होगा, छोटे छोटे थिंग्स होंगे, छोटे छोटे डेफिनेशंस रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा मत सोचो कि सर पेपर एकदम छोटा है, बहुत मेरा लेवल का नहीं है, बट वो आप लोग को वही लेवल का पेपर आप लोग को फाइनल में भी आएगा। तो इन ऑर्डर टू नॉट टू फॉरगेट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, हम लोग उसका रिवीजन हम लोग इवनिंग में करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द इवनिंग क्लास। वो मैं आप लोग को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास ये मंडे से शुरू करना है या नेक्स्ट मंडे से शुरू करना है। असाइनमेंट तो मैं आप लोग को आज से ही डाल दूंगा, आप लोग भी रैंडम में जैसे जैसे टाइम मिलते रहे आप लोग करते रहिए। जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा मेरे को आप लोग बता दिए, मैं करते रहूंगा। मैं करते रहूंगा तो आप लोग भी अगर सपोर्ट करोगे तो जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही क्वेश्चन पढ़ूं मैं ही आंसर बोलूं। आप लोग को असाइनमेंट मैं पहले ही भेज दिया तो आप लोग भी करते रहो और इसका आंसर टकाटक देते रहो। मैं की तो मैं आप लोग को साथ में भेज दूंगा, बट न्यूमेरिकल जब आ रहा है तो आप लोग थोड़ा हेल्प आउट करो, सो मेरे को भी थोड़ा फास्टनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके, तो इवनिंग हम लोग एक्सक्लूसिवली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, खाली न्यूमेरिकल्स करने के लिए प्रॉब्लम्स होगी, वहां पर कोई भी थियरी नहीं पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग विथ योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर कोई लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं पढ़े तो आप लोग अपनी तरफ से एक बार पढ़ लो। मैं तो करूंगा, कब करूंगा तो मुझे पता नहीं मॉर्निंग क्लास में, लेकिन इवनिंग क्लास में तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस से अपने को ओरली न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहेंगे। अगर आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का बेसिक्स है, 1-2 वीडियोस, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियोस, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट वहां पर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो, टाइम भी हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से कितना टाइम बचा है, 7 मिनट्स है ना अभी। आई थिंक वी कैन डू वन प्रॉब्लम स्टिल राइट नाउ। चलो एक क्वेश्चन देख लो। बेसिकली मान के चलो एक मेरे पास पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, और ये हो गया पोटेंशियोमीटर का वायर ए एंड बी। किसी को कुछ बोलना है आप लोग बोल सकते हो, यू कैन टॉक टू मी। ये ऑनलाइन क्लास रखने का रीजन यही है कि आप लोग इंटरेक्ट करना है, वरना मैं रिकॉर्ड करके भी डाल सकता था। बेसिकली आप लोग को सुबह उठाने की मेरे कोई भी क्या बोलते हो इंटरेस्ट नहीं है, बट ओनली थिंग इज आप लोग अगर एक्टिव रहोगे ऑनलाइन रहोगे तो शायद थोड़ा बहुत अप्रोच हो सकता है या थोड़ा बहुत आप लोग को मदद हो सकती है। वरना मैं भी बाकी के लोग के सर का डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दे के डाल दूं तो भी चल जाएगा काम। लेकिन कोई भी मॉर्निंग में इंटरेक्ट ही नहीं करता, सभी लोग सोने की टेंशन में रहते हैं। अभी जैसे ही क्लास खत्म हो गया फिर ओल्ड लो फिर सो जाओ, नहीं, टाइम भाग रहा है बेटा, डोंट वेस्ट द टाइम। अभी बहुत कम टाइम बाकी है और पढ़ना बहुत है, रिवीजन बहुत करना है। हद से ज्यादा रिवीजन करना है तो ही आप लोग का पेपर कर सकते हो। कल के दिन पेपर अगर देखा तो बोलोगे सर पेपर बहुत छोटा था, मैंने रिवाइज नहीं किया, आई कुडंट एबल टू रिवाइज। वैसे छोटे छोटे सिली सिली अगर एक्सक्यूजेस दोगे ना तो फिर से एक साल आपका सीधा सीधा बर्बाद हो जाएगा। सो डोंट गिव सच टाइप ऑफ इन एक्सक्यूजेस एंड ट्राई टू मेक द टाइम अवेलेबिलिटी राइट नाउ। सोने का टाइम अभी बहुत है, बाद में भी आप सो सकते हो, मेडिकल सीट आने के बाद 2 महीने पूरा सो जाओ, काउंसलिंग तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन पहले सीट मारो, प्रूव करो, देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, देखो बेटा, ओके सर। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए टू बी। इसका ऊपर वाला पोटेंशियल है 100 वोल्ट, जिसको हम लोग प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। नीचे अभी मेरे पास 2 सेल्स है बेटा,
ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ऑलरेडी मेरा एक पोटेंशियोमीटर का वो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन और यूट्यूब पे है, वो भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। थोड़ा इससे और बेटर पॉइंट्स वहां पर भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन ये भी मैं फास्ट फास्ट मोड में आप लोग को खाली प्रॉब्लम्स कराने का मेथड करा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, अगर प्राइमरी सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है तो नीचे भी पॉजिटिव है तो ही वर्क करेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल आया तो ये बैटरी वर्क नहीं करेगी, ये बात अपने को याद रखना है। ऊपर जो टर्मिनल होता है सेल का, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, नीचे भी सेल्स का वही पोटेंशियल होना है तो ही वर्क करेगा। अगर पॉजिटिव की जगह मैंने नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दिया, देन इट विल नॉट वर्क। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब यहाँ पर देखो दो सेल्स है यहाँ पर, and two cells are been connected to the galvanometer. Two cells are been connected to the galvanometer. एक ओपन की होती है, पहले एक सेल से उसके बाद एक सेल से, ठीक है। अब यहाँ पर तक गया पॉइंट ए सी तक, isn't it? So मुझे निकालना क्या है राइट नाउ फॉर मी, इट व्हाट पॉइंट इट इज बिकमिंग फॉर मी नल डिफ्लेक्शन। अगेन मुझे एक एक्स की वैल्यू निकालना है, आप लोग को तो मालूम है मेथड, मैं आपको सिर्फ बेसिक बढ़ा दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोग कर लो। पहले जैसे भी जब भी टू सेल्स का कॉम्बिनेशन आता है तो एक तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का, ई इफेक्टिव मैंने बताया था आप लोग को, ई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, इसमें से कितना हो जाएगा ई इफेक्टिव, कोई बता सकता है व्हाट विल बी द ई इफेक्टिव राइट नाउ? व्हाट विल बी द ई इफेक्टिव? 6 ओम है, नीचे का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है, so it is a 12 volt minus of your 6 volt, so that will give me the 6 volt as of your E effective। और R effective कितना बन जाएगा बेटा? R effective will be equal to 6 plus of your 2, that will be equal to your 8 ohms नीचे सेल्स के लिए। तो इसमें करंट कितना बहेगा? I will be equal to your V by your R। V की वैल्यू कितना लोगे आप? दो में से 6 डिवाइडेड बाई your 8, ये हो गया मेरे पास करंट, ठीक है ना। पोटेंशियल अक्रॉस योर ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा बेटा? वी ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू योर, ये ए डैश है बी डैश है, दैट विल बी इक्वल टू योर, ये चार्जिंग ऑफ ए बैटरी होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी होगा बेटा। देखो सेल में से करंट बाहर आ रहा है तो डिस्चार्जिंग हो जाएगा, डिस्चार्जिंग मतलब ई ए माइनस ऑफ योर आई इंटू आर। ई की वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पर? 12 लोगे, माइनस आई वैल्यू कितना आया मेरे पास? 6/8 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया बेटा? 6, ठीक है ना। तो ये कितना बन रहा है देखो जल्दी से, this will be 2 4s are 8, this will be 2 3s are 6, this is 2 2s are 4, this will be 2 3s are 6। तो ये बन गया मेरे पास 12 minus 3 into 3 9, 9/2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 12 15, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2। तो पोटेंशियल अक्रॉस यूर ए डैश बी डैश कितना आया मेरे पास? 15/2 वोल्ट। आया सभी को? आया सभी को? अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन है तो मुझे निकालना क्या है? वी ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू यूर dv बाई यूर dx इनटू यूर x। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना आएगा? कोई बता सकता है कितना? व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर? ये भी मान के चलो सेम 20 मीटर से दे रहा हूँ या 10 मीटर से ले लो, बेसिकली ये भी फिर से मैं 10 मीटर से ले रहा हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा बताओ? पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू यूर, इसमें पहले करंट कितना जाएगा पहले ये बताओ? करंट इज इक्वल टू योर 6/8 और रेजिस्टेंस मान के चलो 1 ओम है तो ए बी का रेजिस्टेंस भी उतना ही हो जाएगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा मेरे पास 15/2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? योर 100 डिवाइडेड बाय योर dx। dx मतलब dx कितना दे रखा है? 10 मीटर्स इनटू योर x कर लो, तो ये जीरो चले गया, तो दिस विल बी इक्वल टू योर हाउ मच बेटा? x विल बी इक्वल टू योर, ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय योर 20 इज इक्वल्स टू योर x। आया? ओके, ये हो गया मेरे पास x की वैल्यू। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, और एक मेथड देखो इसका करने का, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी सेल्स में पढ़ाया था। ई इफेक्टिव निकालने का मेथड, ई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू योर E1/R1 प्लस ऑफ योर E2/R2 डिवाइडेड बाय योर 1/R1 प्लस 1/R2। याद है ये वाला? तो इसमें से भी करो तो आपको इफेक्टिव ईएमएफ उतना ही निकलेगा बेटा। ये हो गया 6/2 प्लस ऑफ योर 12/6 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस ऑफ योर 1/6। तो ये कितना बन जाएगा? 2 1s are, this is a 2 3s are 6, ये हो गया 6 1s are, this one is 6 2s are, so 3 plus 2 that will be equal to 5 divided by 1/2 plus 1/6, इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है? 3/3 plus 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया मेरे पास कितना? 6 5s are 30 डिवाइडेड बाय योर 4, तो ये बनेगा 4 1s are 4 1, कितना बन रहा है देखो ये 4 2 एंड ये बनेगा मेरे पास 15, तो ये बन गया 15/2 वोल्ट्स।
देखो ऊपर भी उतना ही आया था ना मेरे पास पोटेंशियल, यहाँ पर देखो कितना आया था, यहाँ पर भी उतना ही आया था 15/2, और यहाँ पर ऐसा भी करो 15/2, फिर देन रिमेनिंग इज अगेन एज इट इज। तो पोटेंशियल अगर निकालना है तो पोटेंशियल अक्रॉस योर ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू योर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू योर एक्स कर दो, फिर से वही वाली आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए डैश बी डैश कितना है मेरे पास, 12 वोल्ट है। 15/2 कितना लिखा, पोटेंशियल अक्रॉस योर ए डैश बी डैश कितना है मेरे पास 15/2, तो ये हो गया मेरे पास 15/2 आया। दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है बेटा 100 डिवाइडेड बाई योर 10 इंटू योर एक्स कर लो, तो ये हो गया फिर से मेरे पास वही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 20